So we are back. How to handle fear? Yeah. और हम फिर से आए उस विषय में जाएं, डर के साथ में कैसे कार्य किया Yeah. जाए। Is fear from God? क्या डर परमेश्वर के ओर से Come है? on, somebody say yes or no. So we learned from Psalm 27. और हमने इस बात को सीखा भजन संहिता 27 अध्याय से। Yeah. How David was handling fear. भय को कैसा वो हाँ संभाल रहा था, दूर रख रहा था. Okay. We don't play with fear. और हम डर के साथ में खेलते नहीं है। No. We handle fear. और हम भय को उस प्रकार से उसके साथ में काम करते हैं। Yeah. We keep it be out. और उसे हम बाहर रखते हैं। Can I hear an amen? Okay. Go to Psalm 27, भजन संहिता उसका 27 अध्याय verse 1 to verse 3. वचन 1 से 3। The Lord is mine. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked though an host should encamp against me, my heart shall not fear. The war should rise against me. In this will I be confident. Yeah, when things are not going well, still you should be what? Confident. और जब बातें जब ठीक नहीं चलती है तो उस समय भी आपको पूरी तरह आत्मविश्वास में बने रहना है। Now listen very carefully. अभी आप ध्यान से सुनिए। One is learning to keep fear out. और एक जो हम देखते हैं डर को बाहर रखना हमें सीखना है। And second is if you are in a state of fear, coming out of fear. और दूसरे हम देखते हैं अगर आप भय के ऐसे परिस्थिति में हो तो आपको उसमें से बाहर निकलना है। And if you want to come out, just keep listening to God's word. यदि आप चाहते हो उसमें से आपको निकलना है तो आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनना है। Keep hearing God's word. अब परमेश्वर के वचन को आप सुनते रहिए। You are hearing too many things which are not required. और ऐसे बहुत सारे बातों को आप सुन रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। You are seeing a lot of things which are not required. और ऐसे बहुत सारे बातों को आप देख रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है। Fear only comes through two ways. और हम तो डर हम देखते हैं दो रास्ते से आता है। What you see जो कुछ आप देखते हो and what you hear. और क्या आप सुनते हो। So now let us see the right things तो आइए हम अभी हम सही बातों को देखें and let's hear the right thing. और सही बातों को आज हम सुने। Can I hear an amen there? Are you with me? क्या आप Yeah. हमारे साथ हो? So what is David saying? यहाँ पर दाऊद क्या कहता है? I am confident. अब मैं आत्मविश्वास में हूँ Even when challenges come, और जब चुनौती जब आती है तभी भी I am not fearful. अब मैं डरपोक नहीं हूँ। I am still confident. मैं अभी भी आत्मविश्वास से भरा हूँ। Why did he have this confidence? और ये आत्मविश्वास इसके पास क्यों है? Verse 1. वचन 1। Why is he confident? और वो आत्मविश्वास क्यों है? The Lord is my light. अब परमेश्वर मेरा प्रकाश है। The Lord is my अब salvation. परमेश्वर मेरा उद्धारक है। And whom shall I अब fear? मैं किससे डरूंगा? The Lord is my strength. क्योंकि परमेश्वर मेरी ताकत है। You will have situations in life. और आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे परिस्थितियां होंगी। Now you please meditate. और कभी अभी आप इस बात को मनन कीजिए। Yeah. So last week I told you that to keep fear out, और पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया कि भय को या डर को बाहर रखने के लिए not only you should have confidence, सिर्फ आत्मविश्वास उतना ही नहीं होना but है you need to have commitment. और साथ ही आपके पास वो समर्पण भी होना है। Yeah. What is marriage? शादी क्या है? Yeah. One of the things of marriage is commitment. और एक जो शादी की बात है वो है समर्पण Yeah. होना। This year you should make some commitments to God. और इस साल आपको कुछ बातों के लिए परमेश्वर के सामने समर्पित करना है। And don't just make commitment to make commitment. और सिर्फ समर्पण करना है इसके लिए आप समर्पित न हो Yeah. जाइए। Make a real commitment to God. और सचमुच सही ऐसे समर्पण की बातों को आप करिए। What is the commitment which David did? और समर्पण की बात ऐसे दाऊद ने क्या किया? The first commitment. अब पहला जो समर्पण था, I will dwell in the house of the Lord. अब मैं परमेश्वर के भवन में निवास करूंगा। That is my commitment, oh God. और परमेश्वर ये मेरा समर्पण है। From this commitment, nobody can shift me. और इस समर्पण से मुझे कोई भी हटा नहीं सकता। Every day I will come to your presence, oh God. और हर दिन मैं तेरे उपस्थिति में आऊंगा प्रभु। Yeah, this is my commitment, Lord. और ये मेरा समर्पण है।
Even if it is exam, I am still coming to you. यदि परीक्षा भी अगर होएगी फिर भी मैं प्रभु तेरे पास आऊंगा. See, you have to know what is important, what is not important. और इस बात को आपको पता होना है कि कौन सी बात महत्व की, कौन सी बात महत्व की नहीं है. By now you should know it. और अब तक तो आपको पता चलना चाहिए था. Second commitment. और दूसरा समर्पण, What does he say? वो क्या कहता है? I want to see the beauty of the Lord. और मैं परमेश्वर की सुंदरता को देखना चाहता हूँ. What was the second commitment? और उसका दूसरा समर्पण क्या था? I want to see your beauty, O और God. प्रभु मैं तेरी सुंदरता को देखना चाहता हूँ. You're with me. Hey, see, let me just, this is very simple. और ये बहुत ही आसान है. Yeah. If you see the beauty of God, यदि आप परमेश्वर की सुंदरता को आप देखोगे you will have no lack in anything. और आपके पास किसी भी बात की घटी नहीं होगी. You are seeing everything outside, और आप सब बातों को बाहर देखते हो, but you are not seeing what you should actually see. परंतु वास्तविक में आपको क्या देखना है उसको आप नहीं देखते हो. If you see the beauty of God, यदि आप परमेश्वर की सुंदरता को आप देखोगे everything will have the touch of God over your life. और हर एक उन बातों में परमेश्वर का स्पर्श होगा. Jesus said, यीशु ने कहा, when I come back again the second time, और जब मैं दोबारा फिर से जब लौट के आऊंगा will I see faith? क्या मैं विश्वास को देखूंगा. Now, what is God looking for in us? और परमेश्वर हमारे अंदर किस बात को देख रहा है? Faith. विश्वास. What should we look for? और हमें किस बात को देखना है? Not faith, विश्वास को नहीं, the beauty of God. परमेश्वर की सुंदरता को. When we say beauty, और जब हम कहते हैं कि सुंदरता, we are talking about the qualities of God. हम परमेश्वर के उस गुण के बारे में बातें कर रहे हैं. Yeah. So what is David saying? तो दाऊद क्या कहता है? Lord, show me your beauty. Show me your beautiful qualities. और वो कहते हैं कि परमेश्वर मुझे तू अपनी सुंदरता को बता. इसका अर्थ होता है कि अपने गुणों को तू बता. Prayer has no power till you see the beauty of God. और हमसे प्रार्थना में सामर्थ नहीं होगी जब तक आप परमेश्वर की सुंदरता को नहीं देखते हो. Yeah. You know, when you have need of money, suppose you need 4 lakh rupees, अब मान लीजिए आपको 4 लाख की जरूरत है and you say, no problem. और आप कहते कोई समस्या नहीं, I know this brother. और मैं उस भाई को जानता हूँ, If I tell him, अगर मैं उससे कहूंगा I'll get it. अब मुझे मिल जाएगा. From where you got the confidence? ये इतना आत्मविश्वास आपको कहाँ से मिला? You saw the beauty in him. क्योंकि उसके अंदर वो सुंदरता को देखा आपने. What is David saying? दाऊद क्या कहता है? I want to come in your और house. मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ I want to live over और there. वहां पर मैं निवास करना चाहता There हूँ. are 2 reasons. यहाँ पर 2 कारण है. One, एक जो है I want to see your beauty. मैं तेरी सुंदरता को देखना चाहता हूँ I want to see your quality. और मैं तेरे गुण को देखना चाहता I हूँ. want to see who you are, oh और God. प्रभु मैं तू कौन है उसे मैं देखना चाहता हूँ. Look at your prayer. आपके प्रार्थना को देखिए, How you pray. आप कैसे प्रार्थना करते हो. होएगा तो कर दे हम please. What did you see? आपने क्या देखा? What is David saying? दाऊद क्या कहता है? I have committed myself. मैंने अपने आप को समर्पित किया है. For what? किस लिए? I want to see the beauty of God. मैं परमेश्वर की सुंदरता को देखना चाहता हूँ. My life will become beautiful the day I see the beauty of the Lord Jesus Christ. और जिस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह का सुंदरता को देखूंगा तो मेरा जीवन पूरी तरह सुंदरता से भर जाएगा. Okay, now you may say, praise God. It's nice to hear what you are saying, Pastor. और आप कहेंगे पास्टर परमेश्वर की स्तुति हो जो आप कह रहे हैं इस बात को सुनने के लिए. Yeah, very nice. बहुत ही अच्छी बात है. But लेकिन I really want to see the Lord. और मैं सचमुच परमेश्वर को देखना चाहता हूँ. How many of you want to see the Lord? और कितने लोग प्रभु को देखना चाहते हैं? Come on. Okay, tell me, when you pray, what do you require? और जब आप प्रार्थना करते हैं तो कौन सी You बात की need आपको what? जरूरत Come on, होती है? tell me. You need faith. और आपको विश्वास की जरूरत होती है. What is faith? और विश्वास क्या है? Of course, confidence. Confidence in what? और किस बात पर आत्मविश्वास? Of course, God, but if you don't see, if you don't know Him, how will you have confidence? अगर आप उसको देख नहीं पाते या उसको आप नहीं जानते हो तो कैसे आपके पास वो आत्मविश्वास होगा? How? कैसे? Why are our prayers very weak and feeble? और हमारे प्रार्थना इतने कमजोर और इतने दुर्बल क्यों है? Why? क्यों? Because we have not seen Him. क्योंकि हमने उसको देखा नहीं है. We don't know Him. हम उसे जानते नहीं We है don't know His qualities. और उसके गुण को हम नहीं जानते. The day you see it, जिस दिन आप उसको देखोगे praise God. प्रभु की स्तुति हो. Big things will happen. बड़ी बड़ी बातें होगी.
The natural will never be the portion of your life. Always you will walk in the supernatural. और आपकी जो स्वाभाविक जो बातें होती है वो आपका जीवन का भाग नहीं होगा, आप हर समय अलौकिक बातों में चलोगे, Because you have seen the Lord. क्योंकि आपने प्रभु को देखा है. Now praise God. Pastor, what you say is very good. और आप कहेंगे पास्टर जो आप कहते हो बहुत ही अच्छा है, I really want to do it. और मैं इस बात को सचमुच करना चाहता हूँ. Can you help us? क्या आप हमारी मदद करोगे? Praise God. Are you all ready? क्या आप तैयार हो? How many of you want to see the Lord? और कितने लोग प्रभु को देखना चाहते हैं? Yeah. Okay, let's go. Okay. John chapter 1 यूहन्ना उसका पहला अध्याय and verse 18. और वचन 18. Yeah. Yeah. Hallelujah. We are not playing some game by, telling you some nice words. No. I want you to see the Lord. और हम यहाँ पर कोई अच्छे शब्दों को बोलकर हम आपके साथ में खेलते नहीं हैं, परंतु हम चाहते हैं कि आप सचमुच प्रभु को देखें. What do we believe? हम क्या विश्वास करते हैं? Please go to Deuteronomy chapter 6 verse 4. व्यवस्था विवरणम उसका 6 अध्याय वचन 4 को आप देखिए. What do we believe? हम किस बात को विश्वास करते हैं? The Lord our God, the Lord is what? One. अब परमेश्वर जो हमारा प्रभु वो एक है. Okay. Now, but the Bible also tells us अब पवित्र शास्त्र भी ये बात बताती है, they exist in three persons. और वो हम देखते हैं त्रियोग में रहते हैं. Yeah, please write. One God existing in three persons. और हम एक परमेश्वर हम देखते हैं तीन व्यक्ति में रहता है. Yeah, the Father, पिता, the Son, पुत्र and the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा. Go to Genesis chapter 1 and verse 26. उत्पत्ति उसका पहला अध्याय वचन 26 देखिए. Yeah, what did God say? परमेश्वर ने क्या कहा? Then God said, अतः प्रभु ने कहा, let me, और मुझे, let us. आए हम. What did God say? परमेश्वर ने क्या कहा? Let us. आए हम. There are three people over there. वहां पर तीन लोग हैं यहाँ पर. Let us. आए हम. So what do we believe? तो हम किस बात पर विश्वास करते हैं? One God एक who परमेश्वर exists as Father, Son, and the Holy Spirit. और जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में रहता है. Okay. Now let me give you one verse. Yeah. Jesus said when you get baptized, you should be baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Matthew chapter 28. और यीशु ने कहा जब आपका बपतिस्मा होता है तो उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आपका बपतिस्मा होना है. Do you see three persons over here? यहाँ Three पर personalities over here. हाँ, What are तीन- they? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay. John chapter 1 verse 18. यूहन्ना उसका एक अध्याय वचन 18. No one has ever seen God. Bas, that's it. That's it. That's और it. That's it. किसी ने अब तक परमेश्वर को नहीं देखा. Yeah. Who God? कौन परमेश्वर? Father, पिता, Son, पुत्र Holy Spirit. और पवित्र आत्मा. Yeah. But when we say God, no one has ever seen God. Who is that? Is it the Father? Is it the Son? Or is it the Holy Spirit? Who is it? और जब हम कहते हैं कि किसी ने अब तक परमेश्वर को देखा नहीं, तो इसका अर्थ क्या होता है? क्या वो पिता है? क्या प्रभु यीशु है या पवित्र आत्मा है? Who is it? वो कौन है? Let's read it. No one has ever seen God, but God, the one and the only, who is at the Father's side, okay, has made him what? Known. Okay. Amen. So, whom we have not seen? और हमने किसको नहीं देखा? The Father. पिता को नहीं देखा. Please write. Nobody has seen. और किसी ने भी नहीं देखा. So, when David says, और जब दाऊद कहता है, this is my desire, और ये मेरी चाहत है that I should dwell in the house of God, मैं परमेश्वर के घर में निवास करूं to gaze upon the beauty of God. और परमेश्वर की सुंदरता को मैं देखते रहूं. He's not talking about the Father, वो पिता के बारे में नहीं कहता है, because you cannot see him. क्योंकि उसको आप नहीं देख सकते हो. In this body, you cannot see him. और इस शरीर में आप उसे नहीं देख सकते हो. It is not possible. और ये संभव नहीं है. Can I hear an amen? Who was the God that walked with Israel? और वो कौन परमेश्वर था जो इजराइल के लोगों के साथ में चला? Who was that God who gave them spiritual water? और वो कौन परमेश्वर था जिसने आत्मिक पानी उन्हें दिया? It was the rock. वो हम देखते वो चट्टान था. What was the name of the rock? और उस चट्टान का नाम क्या था? Jesus. यीशु. Can I hear an amen there? Yeah? Okay, now. So, what is Jesus saying? यीशु क्या कहता है? Let's read it loudly. No one has ever seen God, Yeah? but God the one and the only Yeah? who is at the Father's side Yeah? made him
known. Okay, so if you know God the Father, यदि आप परमेश्वर पिता को अगर आप जानते हो, who has made God the Father known to you? और किसने परमेश्वर पिता को आपको प्रकट किया? Jesus. यीशु। You don't know God the Father directly. और आप सीधे तरह से परमेश्वर पिता को आप नहीं जानते हो, You know him through somebody. और आप किसके द्वारा उसे जानते हो, And his name is Jesus. और उसका नाम है यीशु। Are you with me? क्या आप हमारे साथ हो? Yeah. Now the beauty I want you to see over here. और मैं चाहता कि यहाँ पर सुंदरता की बात को आप यहाँ देखिए। No one has ever seen God. और किसी ने अब तक परमेश्वर को नहीं देखा। So who saw him? और किसने उसे देखा? Who saw the Father? और किसने पिता को देखा? There are two others over there. वहाँ पर और दो जान हैं, Jesus, यीशु Holy Spirit. और पवित्र आत्मा। They have seen him. और उसने उनको देखा है। You all know Jesus? आप सभी लोग यीशु को जानते How many हो? of you know Jesus? Huh? कितने लोग यीशु को जानते हैं? Oh, wonderful, wonderful. Thank you, thank you, thank you. Okay, okay. So, if I want to see God the Father, अगर मुझे परमेश्वर पिता को देखना है, what should I see? तो मुझे क्या देखना है? Jesus. यीशु को देखना है। If I want to hear God the Father, अगर मुझे पिता परमेश्वर को सुनना है, then whom should I hear? तो मुझे किसको सुनना है? Jesus. यीशु को। Are you with me? क्या आप हमारे साथ हो? But praise God. प्रभु की स्तुति हो। Jesus is not here with me sitting right now. और इस समय प्रभु यीशु मेरे साथ में बैठा हुआ नहीं है। So I can't see him. मैं उसे देख नहीं पाता हूँ। I can't hear what he is saying. और जो कहता मैं उसे नहीं सुन पाता हूँ। Yes or no? Yes or no? आया नहीं? Yes or no? Some of you are thinking, what are you thinking? Don't think so much. अब ज्यादा इतना मत Simple, सोचिए। simple. I'm telling you, Joe, simple. Just don't think too much. Too arithmetic. 2, 3, 4, 5, 6. What is he saying? Just listen what I'm saying. और जो कुछ मैं कहता हूँ उसे आप सुनिए सिर्फ। Okay. Before we come to us, और हमारे बारे में आने से पहले we will go to the disciples. हम उन चेलों के पास जाएंगे पहले। Jesus had how many primary disciples? और प्रभु यीशु के कितने Tell मुख्य me, ऐसे tell me. शिष्य थे? How many? कितने चेले थे? 12. Okay. 12। Okay. Did they see God? क्या उन्होंने परमेश्वर को देखा? In whom did they see God? और उन्होंने परमेश्वर को किस में देखा? In Jesus. यीशु में। Correct? Okay. Go to first epistle of John. यूहन्ना की पहली पत्री Yeah. Chapter 1, और अध्याय 1 verse 1. और वचन 1। That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched, this we proclaim. Bas. What did the 12 disciples do? और इन 12 चेलों ने क्या किया? They saw him, उन्होंने उसे देखा they heard him. और उन्होंने उसे सुना। Now, what did the disciples do? तो उन चेलों ने क्या किया? अगर तुम्हें प्रभु के बारे में बात करना है तो तुम्हें पहला देखना है और सुनना है, नहीं तो आप बात नहीं कर सकते हो। Okay, anyway, praise God. So disciples have died? क्या चेले मर गए? Hello. Yeah, गए क्या? सब लोग गए? Praise God. सब लोग, they are all buried there. उन सबको गाड़ा गया वहां पर। Body has gone to the earth. और शरीर हम देखते हैं मट्टी में मिल गया। Spirit has gone back to the Lord. और उनका आत्मा परमेश्वर के पास लौट गया। अब ये हम बेचारे लोगों का उद्धार हो गया है। Amen. अभी हमको बोल रहे, we have to see the Lord. हाँ, हमें प्रभु को देखना है। Now we have to see the Lord. और अभी हमें प्रभु को देखना है। What did David say? दाऊद क्या कहता है? This is my commitment. और ये मेरा समर्पण है। I will live in the house of God और मैं परमेश्वर के घर में निवास करूंगा all the days of my life और मेरे पूरे जीवन भर, because I want to see his beauty. क्योंकि मैं उसके सुंदरता को देखना चाहता हूँ। First I want to see his beauty. अब पहली बात मैं उसकी सुंदरता को देखना चाहता हूँ। So now how to do this? परंतु ये बातों को कैसे किया जाता है? How? कैसे? Okay, let's come to John chapter 1 verse 1. पहला यूहन्ना का किताब उसका पहला अध्याय वचन 1 में हम देखें। Okay, can you read 1, 2, 3? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Wonderful. Praise God. और आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था
और वचन ही परमेश्वर है। Thank you. Very good. Very good. You are reading the Bible. Very good. Let's go to verse 14. वचन 14 को हम देखें। So who was this word? और ये वचन कौन था? And the word became flesh. और ये जो वचन देहधारी बना। Yes. So who was this word? और ये वचन कौन था? Jesus. यीशु था। Are you okay? Now. Simple, 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 simple. Very simple. What does word mean? और वचन या शब्द इसका अर्थ क्या होता है? Yeah, tell me. Word is an expresser. और हम शब्द जो है उसको प्रकट करना। Word means what? Expresser. और शब्द का अर्थ होता है कि उन बातों को प्रकट करना। Yeah. So who is Jesus? और यीशु कौन है? Word. वो शब्द है। Word means what? और शब्द का अर्थ क्या होता है? Expresser. और हम प्रकट करना। Who is he expressing? और वो किसको प्रकट कर रहा है? God. परमेश्वर को। Hebrews chapter 1 verse 3. इब्रानी उसका पहला अध्याय वचन 3। Here what does the Bible say? यहाँ पर पवित्र शास्त्र क्या कहती है? Yeah. He expresses. और वो उस बात को प्रकट करता है। Yeah. What does Jesus do? और प्रभु यीशु क्या करता है? He expresses. वो उस बात को प्रकट करता है। That is why he is called what? The Word. और इसलिए उसको वहां पर कहा गया कि वो शब्द है। Why is Jesus called the Word? और प्रभु यीशु को क्यों शब्द कहा गया है? Because he expresses. क्योंकि उन बातों को प्रकट करता है। Whom does he express? और वो किसे प्रकट करता है? God. परमेश्वर। Okay. Can I go ahead? Yeah. Before you were born in your mother's womb, और आपके माँ के गर्भ में जन्म लेने से पहले where were you? आप कहाँ पर थे? God's? God was talking to Jeremiah. छोटा बच्चा था ना? God had to come, yeah. अब परमेश्वर को आना पड़ा। Jeremiah chapter 1 and verse 5. And God told Jeremiah, और परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, before I formed you, और तुझे रचने से पहले I knew you. मैं तुझे जानता हूँ। That means इसका अर्थ होता है you did not begin on the day your mummy and daddy had physical intercourse. No. और जब आपके माता पिता का शारीरिक संबंध हुआ उस समय आपकी शुरुआत नहीं हुई। No. नहीं। You were there in somebody else. और आप किसी में अंदर थे। That means इसका अर्थ होता है God is like a scientist. और हम परमेश्वर हम एक साइंटिस्ट के समान है। You were in God. और आप परमेश्वर के अंदर थे। So who are you? तो आप कौन हो? You are an expression of God's thought. और आप परमेश्वर के विचार के आप प्रकटीकरण हो। When you see his beauty, जब आप उसकी सुंदरता को देखते हो you will become like him. आप उसके समान बनोगे। Not only inside, सिर्फ अंदर ही नहीं, but a day is coming एक दिन आने वाला है when you will receive a new body. जहाँ पर आप वो नया शरीर को पाओगे। Even your body will be beautiful like him. और आपका जो शरीर भी हमने तो उतना सुंदर होगा उसके समान। So where did you come from? और आप कहाँ से आए हो? Monkey? बंदर से? From God, yeah. परमेश्वर से आए हो। You came from God. और आप परमेश्वर से आए हो। And where are you going? और आप कहाँ जा रहे हो? Back to God. परमेश्वर के पास फिर से लौटकर। Jesus is called what? प्रभु यीशु को क्या कहा The गया? Word. वो शब्द कहा गया है। Word means what? और शब्द का Express. अर्थ वो है प्रकट करना। Expressing what? और किस बात को प्रकट करना? God. परमेश्वर को। Okay, let's go to John 1 verse 14. यूहन्ना उसका 1 अध्याय वचन 14 को हम देखें। Yeah. So the Word became what? Human. तो वचन क्या हुआ? वो एक मानव बन गया। Yeah. Now, in Word we have different words. Please write. और हम देखते शब्द में हम देखते अलग-अलग शब्द होते हैं। Yeah. So first word, पहला शब्द written word. वो लिखा हुआ शब्द। Second word, दूसरा जो है living word. जीवित वचन। So when Jesus took on flesh, और जब प्रभु यीशु ने देह को ले लिया what did he become? तो वो क्या बन गया? The living word. वो जीवित शब्द बन गया। When he took upon flesh, और जब उसने देह या शरीर को ले लिया he became the living word. तो वो जीवित वचन बन गया।
Now he was walking around. और अभी वो वहाँ चल रहा था, When he spoke, जब उसने बोला people could hear God. तो लोग परमेश्वर को सुन सकते थे। When he did miracles, जब उसने चमत्कार को किया people could see God working. और उन्होंने लोगों ने परमेश्वर को काम करते हुए देखा। तो Number 3, तीसरा नंबर, spoken word. बोले हुए शब्द। Spoken word. Now, बोले हुए शब्द yeah, written word. और लिखे हुए शब्द। Yeah, let's talk about it. Not too much, just a bit. Revelation 19, verse 13. प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय वचन 13। Bible. पवित्र शास्त्र। Okay, Bible. Look here. He wore a robe dipped in blood, and his name, his title was what? Word of God. Can I hear an amen there? So Jesus is called what? Word of और God. प्रभु यीशु को क्या कहा गया? परमेश्वर का वचन। So when we say written word, जब हम कहते हैं कि लिखे हुए शब्द, this God, ये परमेश्वर, he is expressed in words. और हम देते हैं उसको वचन में प्रकट किया गया है। He is expressed in what? Words. और उसे प्रकट किया गया इन वचनों में या शब्दों में। Yeah. Number 2, what did you write? The living word. Living word is what? Jesus. और जीवित वचन क्या है? वो हम देखते हैं वो है यीशु। John chapter 1, verse 14. यूहन्ना उसका पहला अध्याय वचन 14। Word became flesh. और वचन देहधारी बन गया। And number 3 is what? और तीसरा नंबर क्या है? Yeah, spoken word. बोले हुए शब्द। So we'll not come there. I'll come later. Okay? Is that okay? But I have to talk to you before we go. Okay. Yeah. Now let me talk to you about the disciple. थोड़ा मैं भी सा. आपको चेले के बारे में बातें करना चाहता हूँ। One day Thomas told Jesus, और एक दिन थोमा ने यीशु से कहा, after staying with Jesus for 3.5 years, और 3.5 साल यीशु के साथ में रहने के बाद उसने पूछा, Lord, प्रभु, just one request. और एक विनती है, Just show us the Father. हमें सिर्फ पिता को दिखा। 3.5 साल के बाद वो क्या बोल रहा है? एक काम कर रो, सिर्फ पिता को बता, बस बाकी का सब यही मेरा डिजायर, मेरा ये क्या डिजायर क्या है ना, सिर्फ पिता को देख, बस उतना दिखा दे, बस हो गया। John 14, यूहन्ना उसका 14 अध्याय verse 9. वचन 9। Okay, can you read? Come on, let's read. 1, 2, 3. Jesus replied, have I been with you all this time, Philip, and yet you still don't know who I am? Anyone who has seen me has seen the Father. So why are you asking me to show him to you? If you have seen Jesus, यदि आपने यीशु को देखा है, who have you seen? तो आपने किसको देखा The है? Father. पिता को देखा। If you have seen Jesus, यदि आपने यीशु को देखा, who have you seen? तो The आपने Father. अपने पिता को देखा। Now you say, praise God, very good pastor, but now I can't see Jesus. He is not here. और आप कहोगे पास्टर परमेश्वर की स्तुति हो, आपने कहा अच्छी बात है, परंतु अभी यीशु यहाँ पर तो नहीं है ना। Jesus said, यीशु ने कहा, I am not leaving you as orphans. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ रहा हूँ, I am sending you another helper. मैं तुम्हें और एक मददगार को भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए। For what? किस लिए? For what? किसके लिए? Yeah. Go to John chapter 14 and verse 16. यूहन्ना उसका 14 अध्याय वचन 16 को आप देखिए। Yeah. I will ask the Father and he will give you another helper who will stay with you forever. Amen. So actually, who should be helping you? तो वास्तव में आपकी मदद कौन करना चाहिए? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने करना है। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? You want one more verse? Yeah. और एक वचन चाहिए Yeah. आपको? Then I'll show you how he will take you. और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो आपको कैसे ले जाएगा। Yeah. How he will take you. और वो आपको कैसे आगे ले जाएगा। You should have a hunger. और आपके पास वो भूख होनी है। Yeah. I want to see you, Lord. अब प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। Yeah. और थोड़ा थोड़ा सा नहीं खोलने का, थोड़ा अच्छे से खोल के दिखा। इधर ना, इसको बुरखा पहनो। हाँ दे ना, हाँ दे। Can you see? क्या उसे आप देख सकते हो? नहीं। थोड़ा सा दिखा। This is just the physical part to help you.
I want to tell you, God is hidden. मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर छुपा हुआ है. Somebody has to help you. किसी ने आपकी मदद करनी है. Somebody has to help you. और किसी ने आपकी मदद करना है. His name is the Holy Spirit. और उसका नाम है पवित्र आत्मा. Are you with me? Now listen. Okay. अभी आप सुनिए. 1 Corinthians chapter 2. पहला कोरिन्थ की किताब उसका दूसरा अध्याय. Yeah, put 11 beta. Hey. In the same way, only God's Spirit knows all about God. So after Jesus, यीशु के बाद who's the next person who knows all about God? और जो अगला व्यक्ति कौन है जो परमेश्वर के बारे में पूरी तरह जानता है? The Holy वह है Spirit. पवित्र आत्मा. And you have the Holy Spirit inside you. और आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है. You have the Holy Spirit all inside you. और आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है. The day you were born again, you received the Holy Spirit. जिस दिन आपका नया जन्म हुआ उस दिन आपने पवित्र आत्मा को पाया. Romans 8 verse 9. रोमियो उसका 8 अध्याय वचन 9. If you belong to Christ, यदि आप मसीह के हो you have the Spirit of God inside you. और आपके अंदर पवित्र परमेश्वर का आत्मा है. Can I hear an amen? Yeah. God's Spirit lives in you. परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर जीता है. Yeah. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. पहला कोरिन्थ उसका 6 अध्याय वचन 19. Now you are the temple of the Holy Spirit. और अभी आप परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हो. God, the Holy Spirit, resides inside you. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है. He knows all about God. और वो सब बातों को जानता है परमेश्वर के बारे में. And where is He? और वो कहाँ पर है? He's inside me. वो मेरे अंदर है. And what is His work? और उसका काम क्या है? To help me. मेरी मदद करना. So what should be my prayer? तो मेरी प्रार्थना क्या होना है? Holy Spirit, पवित्र आत्मा, I want you to help me to see the beauty of the Lord. अब मैं चाहता हूँ कि तू मेरी मदद करे परमेश्वर की उस सुंदरता को देखने के लिए. Yeah. Are you okay? Now this is very important. और ये बात महत्व की है. To see the beauty of the Lord, अब परमेश्वर की सुंदरता को देखने के लिए the Holy Spirit will take you into a journey. अब पवित्र आत्मा आपको उस यात्रा में ले जाएगा. Yeah. Henry, how long are you married? कितना? 15. You know your wife? क्या आप अपनी पत्नी को जानते हो? अच्छा. तेरे से ज्यादा कोई जानता है उसे? No. Why? Because he has walked with her. क्योंकि वो उनके साथ में चला है. See, who wants you to take the journey? और कौन आपका यात्रा में आपके साथ रहे? हाँ, कौन आना चाहता है? पवित्र आत्मा. Only He knows God. और वही सिर्फ परमेश्वर को जानता है. I also cannot be your help. अब मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा. I cannot be your guide. अब मैं आपका मार्गदर्शक नहीं बन सकता हूँ. Jesus said He will guide you. और प्रभु यीशु ने कहा कि वो आपका मार्गदर्शन करेगा. But where is this journey He is going to take me in? परंतु ये कौन सी यात्रा है जहां पर वो मुझे ले जाने वाला है? कहां से लेके जाने वाला है? Okay. Read 1 Corinthians 2 and verse 9. पहला कोरिन्थ उसका दूसरा अध्याय वचन 9 पढ़िए. Yeah. What does he say? वो वचन क्या कहता है? However, as the scripture says, what no one ever saw or heard, what no one ever thought could happen, is the very thing God prepared for those who love Him. Next verse, verse 10. वचन 10 देखिए. Wow. Is it possible to see God क्या ये संभव है परमेश्वर को देखना without the Holy Spirit? अब पवित्र आत्मा का बिना? Tell me. No. Okay. But it was to us that God made known His secrets by means of His Spirit. The Spirit searches everything, even the hidden depths of God's purposes. Okay.
So praise God. Pastor, लेकिन I can't see the spirit only. परंतु परमेश्वर की स्तुति हो, इस आत्मा को तो मैं देख ही नहीं पाता पासवान। I agree what you say. But I can't see this fellow inside. परंतु इस व्यक्ति को मैं अंदर नहीं देख पाता हूँ। I can see Sachin. मैं सचिन को सिर्फ देख पाता हूँ Can't see this Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा को नहीं देख पाता हूँ मैं। Very good. बहुत ही अच्छी बात, Because we are natural people. क्योंकि हम स्वाभाविक लोग हैं। We are two in one. दो एक में है. How many of you require food this afternoon? और कितने लोग को इस दोपहर को भोजन की जरूरत है? दुपारी जेवण किती लोकांना पाहिजे? जरा हात उचला. अच्छा, praise God. इसका मतलब we have flesh and blood. इसका अर्थ होता है कि पास हमारे पास देह और लहू है। If we are only spirit, अगर हम सिर्फ आत्मा ही रहते do you need food? तो आपको खाने की No. जरूरत थी। But you are also a spirit. और आप साथ साथ आत्मा भी हो। So you are two in one. एक आदमी लेकिन दो चीज, आत्मिक चीज और शारीरिक चीज दोनों है। खाना भी मांगता है लेकिन हम आत्मिक भी है। अभी हम किससे देखने के बारे में बात कर रहे हैं? प्रभु को देखना। वो दिखता ही नहीं ना। और ये तुम बोल रहे हो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, दिखता ही नहीं और फीलिंग तो है ही नहीं। I can't see him. मैं उसे नहीं देख पाता हूँ। I can't feel him. मैं उसे महसूस नहीं कर पाता हूँ। That's why God was very wise. और उसके परमेश्वर बहुत ही बुद्धिमान था इस बात के लिए। Very wise. बहुत ही बुद्धिमान। One day Thomas was saying और एक दिन थोमा कह रहा था to the other disciples. और दूसरे चेलों के साथ, All the disciples were saying, Jesus rose up, Jesus rose up. और सब चेले लोग कहते थे कि यीशु जी उठा, यीशु जी उठा है। ये बंडल वंडल में को मत मारो तुम लोग। जब तक मैं उसके हाथ को नहीं देखता और उसके पैर को नहीं देखता, इधर नहीं देखता, हैदराबादी हिंदी, तब तक मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। देखना है। Jesus came inside the room. प्रभु यीशु उस कमरे के अंदर आ चुके। Toma, उसने कहा थोमा come. आजा। Sorry, Lord. So the Lord said, तो प्रभु ने कहा blessed are those धन्य वे लोग who believe जो विश्वास करते हैं without seeing. बिना देखे। So, but पवित्र आत्मा तू तो दिखता नहीं मुझे। So God gave us the Bible, तो परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र दिया, written word, लिखे हुए शब्द which you can see. जिसे आप देख सकते हो। But after reading this also, और इसको पढ़ने के बाद भी you are not able to see. आप उसे नहीं देख पाते हो। Why? क्यों? Because the Holy Spirit has not opened your eyes. क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपके आंखों को नहीं खोला है और कान को नहीं खोला है। या आँख के ऊपर इतना मट्टी आ गया है। बाइबल खुला है। In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word, जो भी, इन कुछ फर्क नहीं गिर रहा। That's why Paul said, I pray this prayer. और इसके लिए पौलुस ने कहा कि ये प्रार्थना मैं करता हूँ, Please pray. कृपया प्रार्थना करें Don't be caught up with all the good things of life. और जीवन के उन अच्छी बातों में अब जकड़े मत रहिए, Because बूढ़े हो रहे हो। Ephesians 1:18. Please pray, इफिसियों उसका 1:18 and the Holy Spirit will open your eyes. तो कृपया प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपके आंखों को खोल दे। Yeah, this prayer you should pray. और ये प्रार्थना आपको करनी है। I ask that your minds may be open to see God's light. और मैं इस बात की प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके मन को खोल दे ताकि उसके प्रकाश को देख सके। This should be your prayer. ये आपकी प्रार्थना होनी है। Don't read the Bible without praying. और बिना प्रार्थना करे आप पवित्र शास्त्र को मत पढ़िए, It's a journey. क्योंकि ये एक यात्रा है। In that journey, और इस यात्रा में Holy Spirit should open your spiritual eyes. और पवित्र आत्मा ने आपके आत्मिक आंखों को खोलना है। He should open your spiritual ears. उसने आपके आत्मिक कानों को खोलना है। Then you will see. तभी आप देख सकोगे, Then you will hear. तभी आप सुनोगे And you will bring glory to God. और आप परमेश्वर को महिमा ले आओगे।